Welcome, welcome, welcome to this motivational seminar. हमें रुकना नहीं है. Organized by the Business and Industries Development Forum at the very beautiful campus of the Sanjay Ghodawat University. ऐसे कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी होता है, और इसलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत भी ईश्वर को याद करके करेंगे. और मैं यहाँ पर अभी जो हमारे मेहमान हैं, हमारे डिग्निटरीज हैं, इनको न्योता दूंगा फॉर द वेनरेशन ऑफ द मदर एंड द फादर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो गॉडेस सरस्वती. Dignitaries, please. As the dignitaries do the honors of veneration, there's a beautiful Bodhisattva prayer for humanity, which I'm going to read now as they do the honors. Lord, may I be a guard for those who need protection, a guide for those on path, a boat, a raft, a bridge, for those who wish to cross the flood. May I be a lamp in the darkness, a resting place for the weary, a healing medicine for all sick, a vase of plenty, a tree of miracles, and for the boundless multitudes of living beings. May I bring sustenance and awakening, enduring like the earth and the sky, until all beings are freed from sorrow and all are awakened. Thank you dignitaries for that veneration. Let us go ahead. गालिब का ये शेर आप सबको पता है, जो भी जिनको आता है वो मेरे साथ बोलेंगे इसको. वो आए घर हमारे, वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है. कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं. अतिथि देवो भव. Guests many times disguise themselves, but they are God's messengers. And when we celebrate their lives, we celebrate and honor God. So may I call upon now the President of BIDF, Honorable Sanjay Ji Ghodawat, to felicitate the chief guest and the resource person of today's function, Dr. Bhavesh Ji Bhatia, who is a social entrepreneur and a Paralympics champion. I would now request Mahendra Ji Parmar sir to felicitate Mrs. Neeta Ji Bhatia, who is the Solid Rock Foundation behind the life of Dr. Bhavesh Ji Bhatia. Mahendra sir will felicitate Mrs. Neeta Bhatia. Honor, sir. Honor. Thank you. Thank you. You know, when good things happen, they happen also in multitudes. Usually people say the other way around, but I believe in the other way. I am a motivational speaker. We have with us one of our director of BIDF, Raju Parikh ji. He is celebrating his birthday tomorrow, that's 14 January. So, we want to honor him
on his birthday. Raju ji, please come on the stage, and I request the chairman, the president, as well as the secretary, sir, to felicitate him on his birthday. Come on, let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you so much. Here's a man with the Midas touch. He has created an empire that makes the region of Kolhapur-Sangli districts proud. He has put them on the global map. Today, Sanjay Ghodawat Group commands the trust of innumerable customers, consumers, partners, well-wishers. This group is diversified in businesses that range from products, from salt to airplane services. Sanjay Ghodawat Group employs more than 10,000 employees. The Sanjay Ghodawat Educational Campus we are sitting in provides educational facilities to 16,000 students. The chairman of Sanjay Ghodawat Group, Sanjay Ji Ghodawat, is himself an industrialist, educational entrepreneur, pilot of fixed wings, airplane and helicopter, and a philanthropist. He is the recipient of awards at national and international level, like Ahimsa International Award 2022 by the hands of Honorable Governor Koshyari Ji for his social contribution, recipient of the Mahatma Award by Aditya Birla Group for his contribution during pandemic, recipient of Times Most Powerful Leaders Award 2022 by Times of India, recipient of Education Stalwart 21-22 through Education Today Bangalore, and many more. It is our honor to have him in our midst. May I request him to say a few words on this occasion. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के हमारे चीफ गेस्ट भावेश जी भाटिया, महेंद्र जी परमार, नीता जी भाटिया, बीड के सभी डायरेक्टर्स एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति है जिनको भगवान ने एक शक्ति छीन ली उनसे, लेकिन इतनी उनको शक्ति दी भगवान ने दूसरी ओर से कि उन्होंने जीरो में से स्टार्ट करके आज वो करीब करीब 10,000 कैंडल्स के मॉडल्स बनाते हैं और 71 यूनिट्स हैं उनके इंडिया में। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और वो आज हमारे बीच आए, इसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके जो धर्मपत्नी है उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। जैसे कि कहते हैं कि अगर स्टेथोस्कोप हाथ में है तो उन्हें डॉक्टर कहते हैं, और बैलेंस शीट हाथ में है तो उसे सीए कहते हैं, और फाइल अगर हाथ में है तो उसे एडवोकेट कहते हैं, बुक अगर हाथ में है तो उसे टीचर कहते हैं, रिवॉल्वर हाथ में है तो उसे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, और जिसके हाथ में मेहनत भी है, मेहनत भी करते हैं हाथों और सफलता भी मिलाते हैं, उन्हें भावेश जी कहते हैं। तो उनकी स्टोरी मैं सुन रहा था, अभी हम आधा घंटा वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उनकी स्टोरी। तो आज भी वो 18 घंटा काम करते हैं करीब करीब एट द एज ऑफ 54, और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे काम करना चाहिए, और जो तो उनके विजन जिसके पास नहीं है और जो डिसेबल्ड है उनके लिए उन्होंने स्पेशली जो यूनिट्स लगाए हैं, और उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है वो उन्हें देते हैं।
तो ऐसा उन्होंने मॉडल बनाया है और करीब करीब 250 करोड़ का वो टर्नओवर करते हैं साल का कैंडल्स का। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार उनको बधाई देता हूँ कि हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हार्ड वर्क करने से क्या होता है। और ऐसे ही अभी मैंने बैठे बैठे यहाँ उनके बारे में जो उनका एक पर्सनालिटी मैंने देखी, उसके लिए एक उनका डेफिनेशन मैंने बनाया भावेश का कि बी मीन्स है बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, सबके साथ व्यवहार अच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस लाइफ में, सक्सेसफुल बन सकते हो। तो सबके साथ कोई छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम अगर ज़मीन पे है, हमारे पाँव ज़मीन पे है, ज़मीन से टिके हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये उनका बिहेवियर दिखाता है। इसके बाद है हम्बल जो झुकता है वो किसी को भी झुका सकता है, ऐसे मैं मानता हूँ। मैं झुकेगा नहीं सारा, ये मूवी में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो झुकता है वही सबको झुका सकता है। इसलिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए और सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों का। वो करते हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल है। और ए का मतलब है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो भी भगवान ने उनको अगर एक शक्ति कम दी है देखने की, तो दूसरी जगह उन्होंने उनको जो शक्ति दी है उनके लिए, उसके लिए वो हमेशा भगवान का भी ग्रेटिट्यूड करते हैं और सबका जिससे भी मिलते हैं वो उनका भी ग्रेटिट्यूड करते हैं कि आपके वजह से मैं बना। एक्चुअली वो बने हैं उनके हार्ड वर्क से और उनके सच्चाई से। तो फिर भी वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं और सबको क्रेडिट देते हैं कि आपकी वजह से मैं बना। तो ये है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। और वी का मतलब है विक्टर। अगर हमारे पास सच्चाई है, हम काम करते हैं अच्छी तरह से, स्पिरिचुअली काम करते हैं, एथिकली काम करते हैं और इमोशनली काम करते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं हमारे टीम को, तो हम विक्टर बनते हैं और विक्ट्री हमारे कभी भी हमें प्राप्त हो सकती है। और ई का मतलब है एफर्ट्स। जो भी हम काम करते हैं उसमें 110% अगर हमारा माइंड बॉडी सोल हम डालते हैं और पूरे मेहनत से काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिल सकता है। तो इसलिए एफर्ट्स का भी बहुत महत्व है। और एस का मतलब है सैक्रिफाइस। उन्होंने अपने लाइफ में सैक्रिफाइस भी बहुत किए हैं। अकेले वो पूरा वर्ल्ड घूमते हैं और दिखता नहीं तो भी वो अकेले घूम सकते हैं। हमें दिखता है तो भी हम नहीं घूम सकते, फिर भी वो सब जगह जाते हैं और सबको मिलते हैं। जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आइकॉन्स है, उनको सबको मिलते हैं, उनसे भी ज्ञान लेते हैं। तो इस तरह से सैक्रिफाइस करके उन्होंने अपना जीवन अच्छा बनाया है और सक्सेसफुल बने हैं। और एच का मतलब है हार्ड वर्क। आज भी वो उन्होंने कहा कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ। तो सक्सेस मिलने के बाद भी अगर हम काम करते हैं अच्छी तरह से, हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारी लाइफ में। और जैसे हमारे इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रथा है पहले से कि दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाते हैं हम, वो शुभ रहता है इसलिए। तो और हार्ड वर्क बहुत लोग कम करते हैं, दोपहर में सो जाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा के कुछ नहीं होता है। पैरों में जब हम घोड़े की नाल लगा के घोड़े जैसे दौड़ते हैं तभी हमें सक्सेस मिलता है। इसलिए इसका मतलब हार्ड वर्क जो है वो हमेशा हमें करना चाहिए। हार्ड वर्क को कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भावेश जी का मैंने जो लॉन्ग फॉर्म बनाया है वो हमें सबको इम्प्लीमेंट होता है हमारी लाइफ में और सबने करना चाहिए तो ही सक्सेस मिलता है। क्योंकि 50% लोग एक महीने में गिव अप करते हैं, 50% लोग दुनिया में, और बचे 30% जो लोग हैं वो 2-3 महीने में करते हैं। 80% हो गए। 10% लोग 6 महीने में करते हैं, तो हो गए 90%। 5% लोग 1 साल में करते हैं गिव अप, तो हो गए 95%। सिर्फ बचे 5% लोग कभी गिव अप नहीं करते हैं अपने लाइफ में, इसलिए वो सक्सेसफुल बनते हैं। और आज दुनिया का अगर सक्सेस रेशो निकाला जाए तो 5% है। तो इसलिए हमेशा अगर हम नेवर गिव अप एटीट्यूड हमारे पास रहेगा तो हम भावेश जी जैसे बन सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मन की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता, निर्णय की दृढ़ता, व्यवहार की सभ्यता, सबके प्रति नम्रता, भोजन की सात्विकता, धर्म की आस्था बनाती है आपको विजेता। तो इसलिए हमेशा हमारा मन अगर शुद्ध रहेगा, सब विचार हमारे स्पष्ट रहेंगे, सबके साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो स्पष्ट रहेगा, हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे कि हमारा अंदर एक है और बाहर एक है,
ऐसा अगर रहेगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो हमेशा विचारों की स्पष्टता चाहिए, निर्णय लेने की दृढ़ता चाहिए कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हमारा कभी फेल भी होते हैं हम, तो जो डिसीजन लिया है उसे कैसे सक्सेस में बदल सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। डिसीजन लेने के बाद घबराना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि फियर जो है, जो डर है हमारे मन में कि फेल्यूर से हम डरते हैं, तो फियर के दो मतलब है, फेस फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, एक मतलब है, और दूसरा मतलब है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो अगर हम फेस करते हैं हर प्रॉब्लम को और डर को, तो डर के आगे हमेशा जीत है। हमने वर्ल्ड कप जीता था, फर्स्ट वर्ल्ड कप 83 में, और उसके बाद हमें दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में 28 साल लग गए। क्यों लगे इतना 28 साल? डर की वजह से। पहले वर्ल्ड कप में हमको डर नहीं था, हम अंडरडॉग्स थे, तो हम जीत गए। हारे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, डर नहीं था। लेकिन बाद में एक प्रेस्टीज पॉइंट हो गया हमारे लिए कि हमको जीतना ही है हर वर्ल्ड कप, तो वो चक्कर में हम फंस गए और उसमें 28 साल लग गए। तो डर के आगे जीत है हमेशा जो बोलते हैं, तो वो सही है। इसलिए हमेशा मुकाबला करना चाहिए फेल्यूर्स का, क्योंकि जो सक्सेसफुल 5% लोग हैं वर्ल्ड में, उन्होंने फेल्यूर्स का सामना ज़्यादा किया है सक्सेस से ज़्यादा, तो उसमें से ही सक्सेस हमें मिलता है। इसलिए हमेशा वो निर्णय की दृढ़ता जो कहते हैं कि अपन जो डिसीजन लेना चाहिए जो भी है वो, अगर जो डिसीजन नहीं लेता है वो सबसे कमज़ोर आदमी है। जो भी डिसीजन आप ले सकते हो वो लेना चाहिए और उसे सक्सेसफुल बनाना चाहिए। और व्यवहार की सभ्यता, जैसे मैंने बिहेवियर कहा कि सभ्यता अगर आपके पास है सबके प्रति, अपने बच्चे रहने दो, अपनी बीवी रहने दो, या टीममेट्स रहने दो, कोई भी रहने दो, पेरेंट्स रहने दो, सबके साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो ही आपको लोग याद करेंगे, और हमेशा आप हंसते रहेंगे तो ही आपको याद करेंगे लोग। क्योंकि जो स्माइल जो है वो बहुत भगवान ने फ्री दी हुई है, और उसका हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो हमें दुनिया में कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसमें से जो एक हार्मोन्स तैयार होते हैं हमारे दिमाग में हंसने के बाद, तो डोपामाइन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, तो उससे हमें ऐसे कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम हंसते रहे और दूसरे को हंसाते रहे तो बहुत बड़ा काम होता है अपने लाइफ में, और कोई टेंशन नहीं आएगा आपके लाइफ में। क्योंकि स्माइल इज अ स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर आईज, ग्लोइंग सिस्टम फॉर फेस, पंपिंग सिस्टम फॉर हार्ट, कूलिंग सिस्टम फॉर ब्रेन एंड चार्जिंग सिस्टम फॉर होल बॉडी। तो हमेशा आप हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए। और हम भावेश जी को मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आए हमारे यहाँ बीड़ में। और बीड़ का जो मैं एक शॉर्ट में आपको बोलूँगा कि मोटो क्या है जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए, कि हमारी एरिया की जो डेवलपमेंट रुकी हुई है वो कैसे डेवलप किया जाए इसको एरिया को हमारे, वो हमारा मेन मोटो है इसके पीछे। और जो भी हमारे मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, वो सब सेल्फलेस है। किसी को कोई एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है कि पैसा निकाला जाए कैसे, मेंबरशिप से कैसे निकाला जाए, और ऐसा कोई भी ऐसे कभी नहीं होगा यहाँ पे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। सब खुद का पैसा डाल के भी काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक ही चाहिए हमको कि हमारे यहाँ हमारी एरिया डेवलप होनी चाहिए। हम इतना टैक्स देते हैं फिर भी रोड्स नहीं है, एयरपोर्ट का काम भी स्लो है बहुत। तो इस तरह से अगर हमारी एरिया की डेवलपमेंट होगी तो हम कहीं भी बॉम्बे, पुणे या बेंगलोर से पीछे नहीं है। हमारे पास ब्रेन है, उसका पैसा है, उसका सिर्फ प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में है। इसके लिए हम जो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स है वो लेने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाएंगे, भावेश जी जैसे है। तो ऐसे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे और उनके जो प्रोग्राम्स है वो लेंगे, उनका हम स्पीच सुनेंगे, उससे जो मोटिवेशन मिलेगा उससे हम आगे जाएंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। और आज फिर से एक बार आप सब आए और भावेश जी आए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाते जाते इतना ही कहूँगा कि समंदर में गहराई नहीं तो समंदर की कोई कीमत नहीं, और एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं तो एवरेस्ट की कोई कीमत नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं तो पॉकेट की कोई कीमत नहीं, घर में माँ बाप नहीं तो घर की कोई कीमत नहीं, और नदी में पानी नहीं तो नदी की कोई कीमत नहीं, और हमारे जीवन में भावेश जी जैसे लोग नहीं तो हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। That was just an appetizer, no? The main course has to come yet. Already motivate हो चुके हैं, लेकिन appetizer था, अभी और आने वाला है। The only thing worse than being blind
is having sight but not a vision. अंधे होने से भी बुरी बात यह है कि दृष्टि तो है पर दूरदृष्टि नहीं है. हेलन केलर. He is a person who was not fortunate enough to have eyesight like us, but had a vision that has made him what the world knows as Dr. Bhavesh Bhatia ji. To know more about him, may I request Mahendra Parmar sir to introduce him for us. गुड इवनिंग. पहले तो मैं संजय भाई ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भावेश 16 घंटे काम करते हैं. नेताजी ने मेरे काम में पहले दिन बोला था कि वो 24 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं. बीना जी है, बहुत से बायोडेटा आपने पढ़े होंगे, मगर ऐसा बायोडेटा कभी पढ़ा है? मेरे फ्रेंड, अपने को मालूम ही है कि ऊपर वाले के पास एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है. रोज इंसान तैयार करते हैं और वो जिनके हिसाब से छोड़ देते हैं. तो वो जो तैयार होते हैं वो अपने जैसे कॉमन मैन है. अगर भगवान को थोड़ी भी फुर्सत मिले तो कुछ उनमें ज़्यादा से ज़्यादा करतूत डाल के पैदा करते हैं. तो वो संजय भाई जैसे कोड़ौत एक पैदा होते हैं. और ज़्यादा फुर्सत में भी उन्होंने एक शख्स बनाया और जो धरती पे छोड़ा. कैन यू बिलीव 3 times प्रेसिडेंशियल अवार्ड बाय द सिटिंग प्रेसिडेंट्स. नहीं तो एक्स है, वाई है, जेड है, ऐसा नहीं है. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी उनका सत्कार किया है. आज जो हमारा टॉपिक है हमें रुकना नहीं है, तो उनका बुक भी है हमें रुकना नहीं, और उसका विमोचन, उसका इनॉग्रेशन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने किया है. उनके बायोडेटा जो ये इन्होंने भेजा है वो बहुत छोटा है. आज जब भी सुबह मिले तो फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग थिंग. सीईओज का क्लब है जिसमें महिंद्रा से, आनंद महिंद्रा से लेके भारत के टॉप नॉच के सीईओज है. उन्होंने भी भावेश जी को बुलाया और उनसे भी इंस्पिरेशन लिया. मैं 55 साल से टेनिस खेलता हूँ. हार्डली 1-2 पदक मेरे को मिले. पदक मिलने के बाद 1 महीना वही बाजार है, क्या खेला उस दिन यार, ये था वो था. बायोडेटा में भावेश जी के 117 पदक है पैरा ओलंपिक के, दैट टू फ्रॉम जापान, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम वेरियस. और सुबह बोले कि वो आंकड़ा गलत है, अभी और मेरे को 5 गोल्ड मेडल मिले हैं. तो बहुत सी बातें कहने जैसी है, मगर और मैं रुकता तो नहीं हूँ. अगर मैं बायोडेटा पढ़ूंगा तो फिर आपको भावेश जी को सुनने को नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं रुकूंगा. एक और बात है, अगर पत्नी का नाम नीता है तो वो शख्स बहुत ही बड़ा होता है. जैसा मुकेश अंबानी है, नीता गोडावत और संजय बहू है, वैसे ही नीता भावेश है. ये 50 साल पहले मेरे को मालूम रहता था तो मेरे वाइफ का नाम ही बताता है. नीता जी, आप मेरे को खाली बताइए कि भावेश जी ऐसा कैसे किया है इतना छोटा टाइम में. खाली 26 साल हो गए शादी को. जाते एक और अहम बात बोलूँगा. जब भी उनका बायोडेटा आपने सुनील भाई ने भेजा तो मेरा एक गंदा आदत है, कुछ छोटा सा पढ़ूंगा और वापस उसको रिएक्ट हो जाऊंगा. ने बोला यार बायोडेटा मंगाया था तुमने, बायोग्राफी भेजी है. वो बोला मेरी तबीयत अच्छी है, वो शॉर्ट बायोडेटा इतना बड़ा है. तो आज तक तो ऐसा कोई इंसान हमने देखे नहीं कि जितना बायोडेटा इतना बड़ा है. तो फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट यू भावेश भाटिया एंड नीता जी. प्लीज स्टैंड अप एंड गिव हिम अ बिग ओवेशन. सॉरी, जाते और एक उनका बात, बहुत अहम बात करना भूल गया कि इन्होंने 6000 किलोमीटर साइकिल के ऊपर ट्रैवल किया है. तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी था. जैसे मिले मैं बोला भावेश भाई बाकी सब छोड़ो, आप 6000 किलोमीटर साइकिल के प्रवास कैसा किया. इट वॉज अमेजिंग.
डबल सीटर साइकिल बनवाया। उनका एक फ्रेंड था, वो पैर से अपाहिज था मगर देख सकता था, तो वो हैंडल और ब्रेक चलाता था और भावेश जी पैडल मारते थे। सी अ ग्रेट मैन। थैंक यू। महेंद्र भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इन सभी मित्रों के साथ पहचान करवाई। संजय सर ने काफी बड़ा डेफिनेशन बनाया, लेकिन इतना सब कहने के बाद भी शायद भावेश नाम का एक छोटा सा सक्सेस का बूंद तैयार होता है। लेकिन सर, आपके तो नाम से ही सक्सेस शुरू होती है सर। एसजीयू का नाम ही सक्सेस से शुरू होता है। तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, एसजीयू से जुड़े हुए जो भी हैं, अनगिनत जो हमारे स्टूडेंट मित्र हैं, उन्होंने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और एक बात सर हम कैसे भूल सकते हैं, अभी सर ने, महेंद्र सर ने दूरदृष्टि की बात कही, सर ने अभी विजन की बात कही, तो ये पता नहीं ये इत्तेफाक है कि क्या है कि संजय सर, ये नाम में ही एक दूरदृष्टि है। ये महाभारत के जमाने से चला आ रहा है कि जहां जहां एक दृष्टिहीन है, वहां पे एक संजय जी का होना बहुत जरूरी है वहां पे भी है। और वो बड़े भाई की जगह पे है। मैं सालों उनका फैन रहा, उनको बड़ा मैं फॉलो करता था। और शायद बस वो उनका जो कमाल है, वो कहीं ना कहीं वो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन बीड़ के इस यज्ञ में इतने दूर दूर से आप सभी महानुभाव यहाँ पे पधारे हुए हैं, और आप सबकी उपस्थिति में और संजय सर और महेंद्र सर की बातों के बाद जो जबरदस्त ऊर्जा, जो जबरदस्त एनर्जी इस पूरे माहौल में महसूस हो रही है, उसके लिए शुरुआत में ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कोरोना के इस अंधेरे में भी आशा की दीपावली कायम रहे। इस बड़े से शहर में उम्मीद की कली कायम रहे, और परछाइयां कहने लगी कि यही तो समय की रीत है। बीमारी चाहे जो भी हो, जिंदा दिली कायम रहे, जिंदा दिली कायम रहे, जिंदा दिली कायम रहे। दोस्तों, समाज में, महेंद्र भाई साहब, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का काम शुरू करते हैं, बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी मीडिया कवरेज मिलती है, बड़ी तालियां बजती हैं, कुछ अवार्ड भी मिलते हैं। लेकिन समाज में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं, वो धर्म का काम नहीं करते, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत वो अपने काम को ही अपना धर्म बना लेते हैं। और इसमें सर्वोच्च स्थान पे हमारे बड़े भाई साहब संजय भाई साहब है, बीड़ है, हमारा एसजीयू प्यारा यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, मार्क ट्वेन हर बार कहते थे कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तब जब उसको अपना बायोलॉजिकल जन्म मिलता है, और दूसरा जब उसको अपना विजन मिलता है। दिखता नहीं दिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से तो बिना विजन की जिंदगी मतलब बिना फ्यूल की कार की तरह है। हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, अभी मंदी महंगाई का माहौल है, रशिया यूक्रेन ताइवान चाइना दुनिया भर के प्रॉब्लम्स चले हुए हैं। लेकिन वॉरेन बफेट से लेकर रॉबर्ट कियोसाकी तक ने दुनिया के ऊंची से ऊंची इमारत के टेरेस पे खड़े रहकर एक ही बात कही कि जहां जहां क्राइसिस है वहां वहां अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों, ये हर्डल्स है, ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, हमें और ऊपर उठाने के लिए है। और सुनील भाई साहब, इसके लिए तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि अपनी उलझनों से ही हमें, जो हमारे प्रॉब्लम है, कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले, और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले। तो ये जिंदगी का जो खारापन है, ये जो प्रॉब्लम है, यही हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। बचपन में मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आए, माता पिता की इकलौती संतान, डैडी दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। लेकिन माँ की इच्छा थी कि किसी ब्लाइंड या स्पेशल स्कूल में न पढ़ते हुए एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं। बड़े प्रयत्नों के बाद में निकुंज भाई साहब एडमिशन तो मिला, लेकिन बड़े प्रॉब्लम थे, क्योंकि उन 5000 विद्यार्थियों में अकेला ब्लाइंड एक कोने में बिठा दिया जाता। आप देख नहीं पाते, आप किताबें नहीं पढ़ पाते, आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़, चलो साइड पे बैठो, एक कोने में बिठा दिया जाता। मुझे भी लगता कि मैं भी ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरे हिस्से उन तमाम विद्यार्थियों की किताबें और स्कूल बैग संभालने से ज्यादा और काम ही नहीं
जाता है, कोने में बिठा दिया जाता। लेकिन ये कोने में बैठे बैठे वो जो एनर्जी बच गई ना, किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। कहीं से बड़ी बड़ी बांबू ढूंढ के लाना, उस छोटे से झोपड़ी नुमा घर में से कहीं कैंची छुरी चाकू ढूंढना, बड़ी बड़ी पतंग की कमानी बनाना, कहीं से गिल्ली मिट्टी लाओ, उस क्ले में से कुछ शेप बनाओ, मांझा बनाओ। बस कोशिश होती कि कुछ अलग करूं। 4th स्टैंडर्ड तक का क्राफ्ट का सब्जेक्ट था मेरे लिए वरदान रूप था, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म था जहां मैं अपने आप को प्रूव कर सकता था। दुनिया भर की चीजें बनाकर मैं स्कूल में लेके जाता। मेरे क्लास टीचर हर एक क्लासरूम में मुझे उन प्रोडक्ट के साथ में घुमाते, बड़ी वाहवाही मिलती, बड़ी शाबाशी मिलती। तब लगता कि यही मेरे लिए ठीक है, बस ये क्रिएटिविटी मुझे आगे लेके जा सकती। बचपन से उस ओर सोचने की कोशिश की। उन दिनों लड़ाई बहुत होती, क्योंकि स्कूल में और जो विद्यार्थी मित्र थे 12-14 साल के, वो ब्लाइंड अंधा करके चिढ़ाते, और गिरीश भाई साहब बस किताबें फेंक के घर पे जाना और रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन दिनों माँ, जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेरकर एक ही बात कहती कि भावेश, तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आप तकिए में मुंह डालकर रो। अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हट के करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तो नहीं देख सकता, एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। और संजय सर, आप परमिशन दे तो कुछ रिसर्च वाली बात भी मैं इन स्टूडेंट को कहते जाऊं, बात में साथ में कि जब माँ सर पर हाथ फेरती है ना, तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरती है, मेरी हालत देख रहे हो आप क्या हो रही है जी। कभी अगले किसी सेमिनार में आऊंगा तो गर्लफ्रेंड वाले भी रिसर्च है मेरे पास, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। महेंद्र भाई साहब माँ के आशीर्वाद ही थे कि उन दिनों हमने, जैसे आपने कहा, हमने एक टेंडम साइकिल बनाई। मेरा दोस्त जो 8वीं से उस स्कूल में आया था, बड़ी प्यारी दोस्ती। तो 10th के बाद कुछ करने को था नहीं, कॉलेज चालू होने को काफी वक्त था, तो हमने वो टेंडम साइकिल बनाई। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, पीछे मैं पेडलिंग करता, और इस तरह से गोंदिया, महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस गोंदिया, हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, सिर्फ 16 साल की उम्र में। काफी सारी चीजें हैं, उसको कहने के लिए कभी उस पर जरूर हम फोकस करेंगे। लेकिन ये जो हर्डल, स्पीड ब्रेकर, परेशानी, तकलीफ, ये जो शब्द है ना, ये विनायक भाई साहब कभी अकेले नहीं चलते, पूरे झुंड में चलते हैं, पूरे परिवार के साथ में चलते हैं। और मेरे साथ यही हुआ। एक हाथ में तो एमए की फर्स्ट क्लास की 2 डिग्रियां थी, एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी, लेकिन माँ नहीं थी, जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, बस वो जा चुकी थी। उन दिनों उसको अचानक ही 4th स्टेज पे ब्लड कैंसर समझ में आया। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में ट्रीटमेंट चलती थी, 50-50 हजार के फ्लूडेरा 50 mg के इंजेक्शन माँ की ट्रीटमेंट के लिए मंगाए जाते। जो भी बुन था हमने सब बेचा, कि एक ही मकसद था, माँ को बचाना है। दोस्तों रिश्तेदारों से लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। अंत में तो उन्होंने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे कि ये जब भी मिलता है बस पैसे मांगता है। माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे। इन सब परेशानियों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। और माँ के कहे हुए शब्द के भविष्य अलग करने की कोशिश जरूर कुछ करना। तो मुंबई जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की हेड ऑफिस है, उसके पुनर्वसन में मुझे समझ में आया कि कुछ कैंडल्स वगैरह सिखाई जाती, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स हाथ में लगी थी, तो मुझे लगता था यही ठीक है मेरे लिए। उस एनएबी में एक बेसिक ट्रेनिंग मिली मुझे, एक फ्लेम कैंडल बनाने की, साथ साथ में कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग मिली। इन सब सर्टिफिकेट साथ महाबलेश्वर आया, जो मेरा होम टाउन बन चुका था उन दिनों। और मुझे तो सिर्फ 5000 रुपए चाहिए थे मेरे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, लेकिन राजेश भाई साहब, बैंकों के पास वो 5000 रुपए भी नहीं थे। वैसे भी आप सब जानते हैं कि बैंकें उन्हीं को कर्जा देती है जिनको खरे अर्थ में उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो एक मसाज की और जो मेरे पास में स्किल थी, महाबलेश्वर टूरिस्ट प्लेस है, काफी होटल रिसोर्ट्स है, वहां पे एक मसाजिस्ट के तौर पर काम करते हुए 5, 10, 20 रुपए जमा करते हुए मैंने 5000 रुपए जोड़े। उन 5000 रुपयों में से एक सादी मोमबत्ती की कास्टिंग की डाई, जो लाइट जाने के बाद जो कैंडल होती है, वो 24 कैंडल प्रोड्यूस करती थी। जो पैसे बच गए उसमें से 20 किलो कच्चा माल, मोम, वैक्स खरीदा, और उस छोटे से भाड़े के कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की नींव रखी। लेकिन जब तक हम हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर की मार्केट में एक फुटपाथ पे एक 50 रुपए भाड़े पे हैंड कार्ड लेकर दिन भर की बनाई हुई कैंडल के साथ शाम को मैंने उस हैंड कार्ड पे अपने प्रोडक्ट बेचने की शुरुआत की। लेकिन
उस हैंड कार्ड पे जो सबसे सही काम मैंने किया सुनील भाई साहब, मुझे लगता है वो ये था कि पहले मैंने अपने आप पे और अपने प्रोडक्ट पे 100% भरोसा किया, और दूसरा अपने ग्राहकों पे 100% भरोसा किया। जो भी सामने कस्टमर आए उनको मैंने अपने दिल से जोड़ने की कोशिश की, उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, तुम एक गुज्जू परिवार से आते हो जो अक्सर बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तुम अपने नाम की तरह बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो, ये नहीं चलेगा। आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, बिजनेस में सफल होना है, तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, आज तक मैं अपने प्रोफेसरों को नहीं समझ पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग भले प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो संजोगवश जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले यहां लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ा, और मैं सबके सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो उन दिनों शायद 28 साल पहले कुछ ऐसे ग्राहक मिले जिन्होंने मुझे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुत मदद की, और उसमें आप ही में से बीच एक सुनील सारडा जी हैं, मेरे बड़े भाई की जगह पे। उन दिनों सुनील सारडा जी, यहाँ पे ओम प्रकाश चांडक साहब हैं, राधा बहन आए हुए हैं, सुरेश बियानी जी, अनीता बियानी जी, आप सब एज ए टूरिस्ट आए थे महाबलेश्वर। उस फुटपाथ पे सुनील भाई साहब के साथ आप सब महानुभाव मिले मुझे, और उन दिनों से उस हैंड कार्ड से, उस फुटपाथ से, इन सब महानुभावों से जुड़ा हुआ। वे तो तभी भी बड़े थे, लेकिन उन्होंने सनराइज कैनल को बड़ा करने में अपना बहुत 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 योगदान दिया। ये ग्राहक की तरह जुड़े थे, लेकिन आज बड़े भाई की जगह पे हैं। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और तभी जाके ये आगे बढ़ पाया। वैसे भी दोस्तों, जो जिराट थे, जो कार के अब तक के सबसे बड़े सेल्समैन माने जाते थे, वो अपनी 1980 में लिखी हुई बायोग्राफी में कहते हैं एक पैराग्राफ में कि एक संतुष्ट ग्राहक आपको कम से कम 250 नए ग्राहकों तक जोड़ता है। ये उन दिनों कहा था जब मोबाइल भी नहीं थे, एसटीडी भी नहीं थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपका एक संतुष्ट ग्राहक है तो आपको कितनी कितनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ला सकता है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक आपको पहुंचा सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बड़ी छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक इंडिविजुअल ग्राहक कहां तक आपको लेके जा सकता है। उन दिनों जब मैं हैंड कार्ड पे होता संजय भाई साहब, मैं कस्टमर बिहेवियर पे काफी रिसर्च करता कि मेरे हैंड कार्ड के सामने आकर वो क्या बातें करते हैं, मेरे प्रोडक्ट को छूकर उनका क्या अभिप्राय होता है, और उससे मैं अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तैयार करता। कई बार ऐसा भी होता कि सामने जो कपल आता हैंड कार्ड पे, उन जो वाइफ होती उसके हाथों से ढेरों चूड़ियों की आवाज आती होती, और जो हस्बैंड होता बड़ा इंसिस्ट करता अपनी वाइफ को, अरे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन नेबर सबके लिए खरीद लो। आप सब जानते हैं यहाँ जितने भी भाई बहन सब बैठे हैं कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए इस तरह से इंसिस्ट नहीं करता। मार्केट में से साथ में भी जाते होंगे और सामने हस्बैंड ने साड़ी की दुकान दिख गई तो कहां बातों में उलझा के वो डेंजर जोन पार कर लिया जाए, इसके फिराक में रहता है वो। लेकिन वहां पे इससे बिल्कुल अपोजिट होता, हस्बैंड इंसिस्ट करता, और वो साथ में जो ढेरों चूड़ियों की आवाज आ जाती ना, तो मेरे कस्टमर बिहेवियर की रिसर्च मुझे बता देते कि ये जो सामने खड़ा बंदा है जरूर नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको अभी शादीशुदा जिंदगी की कोई खास है। जो 3-4 साल वाले आते हैं उनको तो यूं पहचान लेते, अच्छा कैंडल है चलो एक आधी ले लो। 14-15 साल वालों को तो पहचानने में जरा भी मुझे तकलीफ नहीं होता, अरे अपने यहाँ सांगली कोल्हापुर में सब कुछ मिलता है, क्यों यहाँ से लेके जाए। और 30-35 साल वाले महेंद्र भाई साहब साथ में कहाँ आते, वो हस्बैंड पहले पहुंचता तो 30-35 मीटर दूर से वो वाइफ धीरे धीरे बेचारी आवाज लगाते। और मुझे दूसरी तीसरी चौथी कैटेगरी के कस्टमर को कैंडल बेचने में बड़ा मजा आता। जब तक उनको 1000-1500 की कैंडल बेचू नहीं, मुझे वो थ्रिल नहीं मिलती, वो एडवेंचर नहीं मिलती। और ऐसे ही एक चूड़ियों की आवाज, वही इंसिस्ट करना, मुझसे रहा नहीं गया। पूछने पे पता चला कि 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। क्या दिल में आया, मैंने उस एक हैंड कार्ड से 60 रुपए वाली फ्लोटिंग फ्लावर थी, खुशबू वाली कैंडल, वो मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट दी। थोड़ा हेजिटेट भी हुए, दूसरे जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुका है। जाते जाते जिस ग्रोसरी शॉप के बाहर में ये हैंड कार्ड लगाता था उसका लैंडलाइन नंबर लिया गया। 15 दिन के बाद उस नंबर पे मेरे लिए फोन आया।
मैं कुछ कहूँ उसके पहले उन्होंने ही अपना शुरुआत कर दी कि आपने हमें वो वेडिंग गिफ्ट दी थी, आपको याद है? हाँ सर, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। देखो मिस्टर भाटिया, मैं आपको मेरा कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पूना इन्फोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ और 40 दिन के बाद हमने फेज 1 फेज 2 मिला के एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है 24,000 एम्प्लॉइज के लिए, और भी काफी सारे लोग अपने स्टॉल लगाएंगे। मैंने बिना पूछे आपका वहां पे स्टॉल रखवा दिया, आपको कोई भाड़ा देने की भी आवश्यकता नहीं है, और कंपनी के गेस्ट हाउस में आपके रहने खाने की भी सब सुविधा हो चुकी है। बस ला सको इतनी कैंडल लेके आओ। उन दिनों मैं 50-60 डिजाइन बना लेता था कैंडल्स में। मैंने मार्केट जाना बंद किया, दिन रात मेहनत करके मैंने कैंडल्स की थप्पियां लगाए जो 40 दिन मेरे पास थे, और तय दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को वॉलंटियर के तौर पर लेकर हम पहुंच गए इन्फोसिस। जैसे बाकी वादा था सब उन्होंने करके रखा था, लेकिन एक बड़ा प्यारा काम उन्होंने किया था कि हर एक एम्प्लॉय को मेल करके उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता के रखा था कि किसी और स्टॉल पे जाओ मत जाओ, लेकिन उस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना ही जाना है। और उनकी इस नेटवर्किंग का ये फायदा हुआ कि 3 दिन के एग्जीबिशन में अभी तो तीसरा दिन शुरू ही हो रहा था, हमारी कैंडल खत्म होने को थी। हमने कुछ सैंपल बचा के रखे थे कि बस वो दिखा के हम ये ऑर्डर ले लेंगे, फिर महाबलेश्वर जाके हम भेज देंगे। कंपनी ने भी आने वाले त्योहारों के लिए बहुत सारे ऑर्डर दिए, और दोस्तों उस छोटे से 60 रुपए वाले फ्लावर ने ये कमाल किया जो कभी मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। जब हम इन्फोसिस से लौटे तो करीब 19 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे। तो ये एक इंडिविजुअल ग्राहक, लेकिन सुनील भाई साहब से लेके आप सब जो महानुभाव, चांडक साहब, यानी आप सब लोग उन दिनों जो ग्राहक के तौर पर जुड़े, आपने 19 लाख तक आप सीमित नहीं रहे, आपने उसके आगे कई और जीरो लगवाए सनराइज कैंडल में। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं। लेकिन उस हैंड कार्ड पे एक बात ऐसी घटी ना संजय भाई साहब कि पूरी जिंदगी बदल गई। नीता जी उन दिनों एज ए टूरिस्ट आई हुई थी महाबलेश्वर में, और मुझे उस हैंड कार्ड पे अकेला देखा तो कुछ कैंडल भी खरीदी। जाते जाते एक मुफ्त की सलाह भी दे दी कि कोई मददनीश क्यों नहीं रख लेते। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है, मददनीश का पगार कहाँ से निकाले। उन्होंने कहा हम तो बचपन से आते हैं, यहाँ पास में बड़ा सा बंगलो है, पूरा परिवार रिश्तेदार सब रुके हुए, मुझे और तो कुछ काम है नहीं, तो शाम को मैं आके आपको हेल्प कर दिया करूं। अब ये टूरिस्ट सीजन अपनी सवाब पर थी और फ्री में मददनीश मिल रहा था, कौन छोड़े। मैंने हामी भर दी। दूसरे दिन से नीता जी ने आके मुझे हेल्प करनी शुरू कर दी, और जब भी हम फ्री होते तो अपने बारे में बताती, मेरे बारे में जानने की कोशिश करती। साथ साथ पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस और फुटपाथ पे मुझे हेल्प भी कर रही थी। 18 दिन तो बड़े ठीक ठीक कटे, लेकिन 19वें दिन गड़बड़ हो गई। शायद टूरिस्ट भी कम थे, हम आपस में बातें कर रहे थे और उसके तरफ से बात आ गई कि देखो भावेश एक बात कहनी थी, लेकिन मन पे मत लेना, नाराज मत होना। मुझे लगा कल परसों वो वापस मुंबई जाने वाले होंगे, इसलिए इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कहो आप क्या कहना चाहते हो। उन्होंने नहीं पहले प्रॉमिस करो। हाँ भाई प्रॉमिस करता हूँ, बताओ तो सही क्या कहना चाहते हो। और फिर कुछ क्षण रुकने के बाद उसके तरफ से बात आई, भावेश शादी करोगे मुझसे। पीछे नगर पालिका की खुली गटर बह रही थी, मैं तो गिरते गिरते बचा। नहीं, हंसने की आवश्यकता नहीं है, उन दिनों हैंडसम में बड़ा जबरदस्त हुआ करता था। मैंने अपने आप को संभलते हुए कहा कि देखो घर में कुत्ता बिल्ली पालो, उससे भी हमें सिंपैथी सहानुभूति है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, ये कहाँ दिन तक कितने दिन टिकेगी। बड़ा सुंदर जवाब मिला। भावेश मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ 18 दिन काम करके अब मुझे खरे अर्थ में मेरी जिंदगी का गोल मिल चुका है। तुम्हारे पास एक जबरदस्त आर्ट है, लेकिन तुम्हें एक साथी सपोर्ट की जरूरत है। हम दोनों एक होते हैं और मिलकर ऐसे हजारों की संख्या में हमारे ब्लाइंड और दिव्यांग मित्र हैं जिनके लिए काम करने की बहुत जरूरत है। मैं उसकी बातों को ना नहीं कह सका। हमने तो वहाँ फुटपाथ पे महेंद्र भाई साहब एग्रीमेंट कर ली, लेकिन वहाँ पीछे विलन बहुत थे। अनारकली के लिए एक अकबर बादशाह थे, मेरे लिए दर्जनों थे, वो कहाँ मानने वाले थे। माता पिता तो उसके कन्विंस हुए, लेकिन और जो रिश्तेदार साथ में आए थे उन्होंने शर्त रख दी, क्योंकि वो भी अभी गुज्जू परिवार से, अपना डीएनए तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो उन्होंने भी शर्त रख दी। सब बिजनेसमैन तो बिजनेस ही था ये, उनके लिए भी उन्होंने शर्त रख दी कि देखो अभी ऐसा करते, सगाई करते हैं, 1 साल के बाद में शादी करेंगे। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था। सुनील भाई का छोटा भाई बड़ा ढीठ किस्म का इंसान, हर हफ्ते मैं मुंबई पहुंच जाता उससे मिलने कि कहीं वो अपने विचार ना बदल दे। अब हर हफ्ते
गिरीश भाई साहब पैसे कहाँ से निकाल लेके, तो आजू बाजू के जो फेरी वाले थे, स्ट्रीट होकर थे, उनसे उधार के पैसे लेके स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में मुंबई जाना, और उधार के पैसों में बॉम्बे जाते जाते मुझे विनायक भाई साहब दिल की हर धड़कन एक ही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। यहाँ पे मुझे पता है स्टूडेंट को क्या चाहिए। आपको बस मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बैचलर है सब रट्टा लगा रहा हूँ मेरी बातों का। आपको आने वाले दिनों में बड़ी शादीशुदा भी लगा सकते हैं। संजय भाई साहब हर हफ्ते मुंबई गया, साल भर कई बार हुआ कि उसके लिए कोई गिफ्ट ले लो, लेकिन लगता मेरी वो छोटी सी गिफ्ट उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगी, चलो कुछ फ्लावर ही ले लेते हैं। हर हफ्ते मैं उससे मिलने गया, लेकिन एक भी फ्लावर नहीं खरीद पाया, क्योंकि निकुंज भाई जब मैंने उसके लिए फ्लावर खरीदने की बात सोची, दिल की धड़कन ने एक ही बात कही कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब। एक साल पूरा हुआ, मैं नहीं चाहता था अपने घर से एक रुपया भी लाए, मेरी इन भावनाओं को इसने बड़ी कदर की, और महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में हमने दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न की। तीसरे चौथे दिन से उस फुटपाथ पे हमने हैंड कार्ड पे काम करना शुरू किया, लेकिन एक गिल्ट, एक जिल्लत बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे वो किसी भी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम यहाँ खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते और तभी लकड़ियां पटकती हो और हमारे ब्लाइंड मित्र भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। ये बड़ा दुखद होता। पता नहीं दूर दराज के जिलों राज्यों से हमारे इन ब्लाइंड और दिव्यांग मित्रों को पता चल जाता कि महाबलेश्वर में अब टूरिस्ट सीजन पूरी फुल है, तो बहुत सारा भिक्षा मिलेगी और वे आ जाते, और ये बड़ा दुखद होता। ऐसे ही 5 मेरे ब्लाइंड मित्रों को हमने स्टॉल पे बुलवाया, चाय मंगवाई, कोई दोस्ती करने की कोशिश की, और काफी फोर्स करने पे पता चला कि 80-90 रुपए में जोड़ी देते हैं। उन दिनों मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी थी। मैंने उनको 300 रुपए रोज के देने और रहने खाने की सुविधा का वादा करके उनको कन्विंस किया, और मैं नीता उन 5 ब्लाइंड मित्रों को लेकर उस एक कमरे के घर में पहुंचे, और खरे अर्थ में सनराइज कैंडल की वहां से शुरुआत हुई। दूसरे दिन हमने कुछ 8 कमरों का भाड़े की व्यवस्था पहले देख रखी थी, वो ले ली। 4 कमरे इन बच्चों के रहने के लिए, 4 कमरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन ये ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। वो साल में 500 रुपए का अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराएगा, लेकिन रोज सुबह उठकर कॉल सेंटर में फोन करके ये जानने की कोशिश करेगा कि आज की नई स्कीम कौन सी आई हुई है। और इसी नेटवर्किंग के चलते इतनी सारी बड़ी टीम हो चुकी थी। अब यहाँ कैंडल्स की थप्पी लग जाती और बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार्ड। अब इतने सारे लोगों का रोज का 300 रुपए देना, रहने खाने की, कच्चा माल, वर्कशॉप का भाड़ा और बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार्ड, कैसे ये मुमकिन हो सकता था। तब लगा कि ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि जो भी सेविंग थी फुल स्पीड में कम होते जा रही थी। लगा आज नहीं तो कल इसको बंद करना पड़ेगा। दिमाग में तो यही सब बातें चल रही थी, और बड़े बुजुर्गों की बात भी बार बार याद आ रही थी। कभी जो मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार से जो आते हैं ना, अक्सर उनको ये सुनना, कुछ अलग करने की कोशिश की नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। आपने सुना नहीं सुना, लेकिन मैंने कई बार सुना, और मुझे लगा, पहली बार मुझे लगा कि शायद वो ठीक ही कह रहे थे। हम ना कि अपनी मर्यादा लांग गए, ये समाज सेवा अब ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन दिल की गहराई से कुछ और बात आ रही थी कि ये क्या बात हो गई कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी। और उन्हीं दिनों सुनील भाई साहब, मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की रेडियो पे एक स्पीच, रेडियो हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता है, उस पर एक बहुत प्यारा भाषण मैंने कलाम साहब का सुना, और उसमें एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इस लाइन से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते। जहां एक टेबल मिली हमने तुरंत हमारा शोरूम खड़ा कर दिया, जहां एक कमरा मिला हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आजू बाजू के जिलों से, कई राज्यों से
ब्लाइंड मित्र जुड़ना चाहते थे। नीता नहीं चाहती थी कि कंपनी में कोई मालिक नौकर हो, कोई एम्प्लॉयर हो, इसलिए हमने इसको डिजाइन इस तरह से किया कि जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था सब नंग पे डाला, मार्केटिंग पूरा डिडक्शन पे कि बनाओ उतना आपका, बेचो उतना आपका। इसलिए हर एक अपने आप को पार्टनर की तरह ट्रीट करने लगा, अपना 100% देने लगा। जो अच्छा बोल लेते थे सब मार्केटिंग में चले गए और अपना पूरा एफर्ट्स उन्होंने लगाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी एक डिजाइन से शुरुआत की थी, आज 10,700 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। जो कभी 20 किलो से हमने शुरुआत की थी, गए साल 2,560 मेट्रिक टन कच्चा माल हमको कम पड़ गया। करीब 14 राज्यों में 71 मेन यूनिट्स हुई। जहां जहां बड़ी बड़ी इमारतें अलग अलग संस्थाओं की थी, उनको हमने अपना पार्टनर बनाया, उनको लीडरशिप दी। जहां जहां भीड़ है, फुटफॉल है, टूरिज्म है, शिरडी तिरुपति से लेकर हर एक जगह पे हमारे रिटेल काउंटर, एक 4,500 से ज्यादा रिटेल काउंटर हो गए। और बनाने बेचने वाले सभी हमारे ब्लाइंड और दिव्यांग मित्र थे। और आज 20-25 हजार रुपया महीने से लेके वे लोग करीब करीब 50-60 हजार रुपया महीने की इनकम पाने लगे। जो कभी संजय गांधी निराधार योजना के 1,000 रुपये पे पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे, अब वो 1000 दिन के कैसे कमाए, 1000 घंटे के कैसे कमाए, इस ओर सोचने के लिए वे अग्रसर हो चुके हैं। करीब 70 देशों में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। जो घर मेरे इन ब्लाइंड मित्रों को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके वे लोग अपने घर संभालने लग गए। और हम ईश्वर खुदा को, महेंद्र भाई साहब, थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और ये इतने सारे जो पार्टनर जुड़े ना, ये जो उन्होंने अपना 100% देना शुरू किया, उसका सबसे प्यारा नतीजा आया लॉकडाउन में, कोविड में। हमने भी बहुत सारे दोस्तों को खोया, लेकिन हमारे पास और कुछ काम नहीं था। जितना कच्चा माल था वो 5 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि कैंडल जलाओ, दिए जलाओ। सब गवर्नमेंट की गाड़ियां हमारे सेंटर पे, सब कैंडल खत्म हो गई। बची कुची कैंडल हमने कोकन में बाढ़ आई हुई थी, वो चक्रवात था, वहां डोनेट कर दी। अब हमारे पास ना कच्चा माल था ना कैंडल थी, तो करें क्या। तो हमारे पास सबसे प्यारा जो था कि इन 28-27 सालों का ग्राहकों का डेटा था। करीब करीब 9-9.5 लाख ग्राहकों का डेटा था। ये हमारे पास सबसे बड़ा खजाना था। हर एक इंडिविजुअल ब्लाइंड ने सामने से स्वेच्छा से 50-50 नंबर वो रोज के लेते और उन हर ग्राहकों को वे फोन करते, इस कोविड में उनको शुभकामनाएं देते और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं भेजते। उन दिनों ट्रांसपोर्ट बंद था, कुरियर बंद था, लेकिन हमारे पास और एक जरिया था स्पीड पोस्ट का। उसके माध्यम से हम उनको खत भेजे शुभकामनाओं के, उनको सैंपल भेजे। और ये नेटवर्किंग का फायदा ये हुआ कि आज ये 9,500 के करीब जो ब्लाइंड मित्र मेरे साथ काम करते हैं, वो 3 शिफ्ट में भी काम कर ले, फिर भी 2027-28 तक का काम उन लोगों के लिए आ चुका है। इतना जबरदस्त नेटवर्क खड़ा हुआ। कई लोग मुझे संजय भाई साहब उन दिनों फोन भी करते कि तुम महाबलेश्वर में मजे कर रहे हो और हम यहाँ एक अपार्टमेंट में अटके हुए, पुणे, मुंबई, बेंगलोर से। काफी दोस्त जैसे मुझे कंप्लेन बुक समझते हैं और मुझे फोन करते हैं। मैं उनसे कहता हम कितने लकी हैं कि एटलीस्ट परिवार के बीच में, नहीं तो हम भाग रहे थे, सिर्फ भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे वो भी हमें पता नहीं, एटलीस्ट कोविड ने हमें कहीं रुका के तो रखा। और मैं उनसे कहता कि देखो तुम्हारे घर में माता पिता, भाई बहन, बीबी, बच्चे, जो भी तुम्हारे में बाजू में बैठा है, उसका हाथ में लेकर मेरे साथ ये जरूर कह देना कि सभी चांद सूरज सितारे, सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक हाथ तेरा मेरे हाथ में रहे। और साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, कोरोना से कह दो कि औकात में रहे। दोस्तों, तो ये परिवार का जो साथ है, वही हमें ऐसे कितनी पैंडेमिक आ जाए हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कोई भी अपॉर्चुनिटी संधि तक आके कभी हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। और ऐसा ही एक वाकया हुआ जब 2008 में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल बीकेसी मुंबई में नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी वो अवार्ड दिया। वे तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर हमें नरीमान पॉइंट मेकर चेंबर के 9th फ्लोर वाली अपनी ऑफिस में ले गए। मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि ये अंबानी साहब चाहते थे ये कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है और हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई थी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, ये पैसे रखो, बड़ी सी फैक्ट्री डालो, और पैसे चाहिए तो मांग लेना। रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है। उन दिनों शायद माँ के संस्कार काम आ
गए। मैंने वो कवर उनको वापस देते हुए कहा नहीं सर, मुझे पैसों की नहीं, मुझे काम की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारे सिस्टर कंसर्न, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का उपयोग आप क्यों नहीं करते? इसमें उजाला है, इसमें खुशबू है और अनगिनत हाथों को इससे रोजगार जनरेट होती है। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिला। अब मुझे बताइए संजय सर, यहाँ तो एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, एक से बड़े एक एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इससे बड़ी बिजनेस की बात क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक लौटा कर, या मैं तो यूं कहता हूं कि 51 लाख का चेक हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया और 2008 से टिल टुडे सुनील भाई साहब करीब करीब 127 करोड़ से ज्यादा का काम अकेले रिलायंस में उनके एक ऑर्डर से 3-3, 4-4 महीने 13-14 हजार जो स्किल्ड हमारे ब्लाइंड मित्र हैं, दिव्यांग मित्र हैं, उनको रोजगार जनरेट होती है। सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं, उनका पीओ आया, परचेस ऑर्डर आया, उसने अपना कमाल दिखाया और काफी कंपनियों ने, सीमेंट मैन्युफैक्चर, फार्मास्यूटिकल्स हैं, बड़े बड़े होटल ग्रुप्स हैं, उन सब ने हमको काम देना शुरू किया। इससे और ज्यादा रोजगार जनरेट होने लगी। हमने काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, इवन सुला वाइन की वाइनरी से लेके मिनिएचर से लेके फार्मास्यूटिकल के टॉनिक बोतल तक हमने वैक्स में बनाया। 2014 में हमने संजय भाई साहब किंगफिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। एक मैं दिखाने के लिए लेकर आया आपको सर, ये सर वही बहुत प्रॉब्लम है सर, ये ऐसे 3.5 लाख का बियर आवे, अभी इसको देख के मुंह में पानी लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो पहले बता दूं, ये चिल्ड भी नहीं है और मोम का बना हुआ है। हाँ नीचे जेल और ऊपर हार्डबैक्स है। तो इस तरह से हमने 3.5 लाख पीस हमने किंगफिशर के लिए संजय भाई साहब बनाए। लेकिन संजय भाई साहब, आपने जो क्वेश्चन किया ना, हम रोज सुबह उठकर ईश्वर खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि मालिया जी भागे, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए। नहीं तो अभी मैं महेंद्र भाई साहब के साथ इंग्लैंड के चक्कर लगाता रहता हूँ वसूली के लिए। काफी मैनेजमेंट कॉलेज हमें केस स्टडी करती हैं, दिल्ली आईआईटी से लेके अहमदाबाद आईआईएम। अभी 18 तारीख को आईआईएम विशाखापट्टनम में मैं मार्केटिंग पे स्पीच देने के लिए जाऊंगा। तो काफी कॉलेज समझने की कोशिश करते हैं कि आप ये कैसे प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हो, कैसे ये सक्सेस पाते हो। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है चीजें बेचना। मार्केटिंग सबसे जरूरी है। आप बेच सकते हो तो फिर आप बनाने की ओर अग्रसर होइए, अदरवाइज आप आपका वक्त जाया कर रहे हो। तो मार्केटिंग सबसे जरूरी है। हम दुनिया के कोई भी लैंग्वेज उठा लें, हमें ये कहावत मिलेगी कि अगर आप बेच सकते हो तो आप मिट्टी भी बेच सकते हो, अदरवाइज आप सोना भी नहीं बेच सकते। तो मार्केटिंग सबसे जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद 5-7 मिनट में ज्यादा ले लूंगा आपकी सर, लेकिन ये एग्जांपल देना बड़ा जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट मित्र भी बैठे हुए हैं। हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है, लेकिन हमारी कैंडल इंडस्ट्री का कोई वेस्टेज नहीं होता। लास्ट में झाड़ू निकाल के जो चूरा बचता है वो भी रिसाइकलिंग हो जाता है। लेकिन अपने कुछ आलस के चलते, कुछ किलोज और क्विंटल्स में जब चूरा था तब तक हम शांत बैठे, लेकिन वो टनों में गया, सभी गोडाउनों की वो बीच में आने लगा, तब लगा कि इसको ठिकाने लगाते हैं। और एक प्रोजेक्ट के तहत हमने उन प्रोजेक्ट को जो भी चूरा था, लाल पीला बारीक अलग अलग कलर का, रेती से मोम का जो चूरा डाई वर्क, एम्बोस, कार्विंग वगैरह करके नीचे गिर जाता था, वो सब हमने इकट्ठा कर रखा था। अब हमने कुछ पिघला के कोशिश की तो बड़े भद्दे कलर आने लगे, क्योंकि काफी सारे कलर के चूरे थे उसमें। हमने काफी कलर भी मिक्स किए, लेकिन रिजल्ट सेम। फिर काफी सोच विचार करके हमने उसमें काले कलर डाले, और जब डाई में से कैंडल निकली तो ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे वॉलेंटियर ने कहा कि ये तो मार्केट में धूम मचा देगी। उनकी बातों में आके 1.5 महीना हमने सभी यूनिटों को और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रोका, और जितना चूरा था उनको काली कैंडल में ढालना शुरू किया। अलग अलग शेप की, अलग अलग खुशबू की हमने काली कैंडल बनाई। हमारी प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग टीम ने बड़े प्यारे बॉक्स बनाया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई मार्केट बेचने के लिए अलग अलग जगहों पे। एक 20-25 दिन के बाद में जब हमने सर्वे किया तो प्रकाश भाई साहब सर पे हाथ रख के बैठ गए, एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी। अब कारण जानने की कोशिश की तो काली कैंडल भी होती क्या, कस्टमर हाथ भी लगाना नहीं चाहते थे। अब पहले तो चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन उसमें फ्यूल, लॉजिस्टिक और इतना पैकेजिंग और इतना सब लेबर वगैरह लग गया, कंपनी इसमें से कैसे सर्वाइव हो पाती।
तो इसको तो ठिकाने लगाना बड़ा जरूरी था। हमने वापस मार्केट के सर्वे करने शुरू किया तो काफी जगह से हमें फीडबैक मिलने लगे कि कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं, चुनिंदा लोग, जो ऐसे पूछते हैं कि आपके पास फैंसी या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव भगाने वाली कोई चीजें वगैरह, और बस हमें रास्ता मिल गया। हमने गाड़ियां निकाली और नियरेस्ट शोरूम पे भागे, जो भी बेचने वाले थे उनको कहा कि आप कस्टमर आए तो पहले काली कैंडल हाथ में दिया करो। बोले हम यही करते हैं सर, लेकिन कोई हाथ टच करना भी नहीं चाहता। मैंने कहा ऐसा नहीं, ये हाथ में देते उनको एक विनम्रता से ये जरूर कह देना कि तुम्हारे घर की, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलाया करो। और अच्छा, ये खरीदने वाले भी कोई आम किसान मजदूर नहीं थे, जितने हाई प्रोफाइल थे वही सब ये नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में अटके हुए थे। और आज परिस्थिति ये है कि चूरा कब का खत्म हो जाता है, हमें सफेद मोम को काला करके हमारे ऑर्डर पूरे करने हैं। लेकिन हमने उनको चीट नहीं किया, वो जो चाहते थे वो हमने दिया, क्योंकि ये सालों से उनके रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब कुछ कमाल तो जरूर हो रहा है। बिल्कुल हाँ जी, उनके वो नेगेटिव एनर्जी भागी नहीं भागी, लेकिन हमारा गोदामों का सब चूरा खत्म हो जाता है। और आज बड़ी खुशी खुशी हम ये काले कैंडल के ऑर्डर लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो ये मार्केटिंग सबसे जरूरी है, चीजें बेचना। बस हम अपने प्रोडक्ट पे, अपने आप पे भरोसा करें और बस आगे बढ़ने की कोशिश करें। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई, एक आधे घंटे का पूरा एपिसोड आमिर खान जी के माध्यम से वो बनाया गया। 14 में हमें भारत सरकार की तरफ से बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कैंडल इंडस्ट्री का पहला नेशनल अवार्ड दिया गया। 1969 से ये नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन कैंडल इंडस्ट्री का ये सबसे पहला अवार्ड था। लेकिन दिल्ली से लौटकर माननीय प्रणब मुखर्जी जी उन दिनों राष्ट्रपति थे, विज्ञान भवन में वो अवार्ड दिया गया। लेकिन दिल्ली से लौटकर मैंने महाबलेश्वर जाकर उन तमाम स्ट्रीट होकर को ढूंढा जिन्होंने संजय भाई साहब कितनी बार मेरी हैंड कार्ड फेंक दी थी। क्योंकि आप जानते हैं सब, महाबलेश्वर छोटा सा मार्केट, ई चीज की मारामारी, वो कहते तुम निकलो तो हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार आके यहाँ पे दूसरी शूज चप्पल की वगैरह रैली लगा लेगा। लेकिन उनको इग्नोर करके मैं काम पे लग जाता तो नतीजा होता कि मेरी हैंड कार्ड फेंक दी जाती। वहां से हटाने के लिए दिल्ली से लौटकर मैंने उन तमाम स्ट्रीट होकर को ढूंढा, उनके घर गया, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला और उनको मैंने एक बात जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। दोस्तों, ये जो हर्डल्स हैं ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं और ऊपर उठाने के लिए है। स्वामी विवेकानंद जी की कल जन्म शताब्दी तिथि थी, उनका बर्थ एनिवर्सरी थी। बड़ी प्यारी बात वे कहते थे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आती तो समझो राह ही गलत है दोस्तों। और इसके लिए मैं इतना जरूर कहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जान होता है। तो हम संघर्षों से लड़ें, न कि पीठ दिखाकर भागे। दोस्तों, 2016 में हमें 58,000 नॉमिनेशन में से ओपन कैटेगरी का एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का दूसरा नेशनल दिया गया। रेलवे, एयरलाइंस और काफी अनगिनत जो हमारे होटल ग्रुप्स वगैरह जो डिसेबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उनको पीछे छोड़कर हमें एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर के लिए और 2019 में रोल मॉडल इंडिया का तीसरा। लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड से आज यहां तक का जो मंच है, मैं समझता हूं उसमें एक ही शब्द काम आया और वो था हार्डवर्क। हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं सभी से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और आज आप यहां से कुछ लेके मत जाना, लेकिन मेरी इस हार्डवर्क वाली 4 लाइनों को अपने साथ बांध कर लेके जाना कि वो जो दिया होता है मोमबत्ती के समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है। कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रोन दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। यहाँ संजय जी बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं, अनगिनत आप सब यहाँ पे एक से बढ़कर एक उद्योजक है। आपने भी जिंदगी में कितना हार्डवर्क, कितने फेलियर सहे होंगे, तब जाके आप इस ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। आज
यूथ कैसा है ना कि उसकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि बस वो शॉर्टकट मारना चाहता है, लिफ्ट में जाके बटन दबा के उसको लगता है कि मैं रातों रात टॉप फ्लोर पे पहुंच जाऊं। लेकिन ये जो स्टेप करके आगे बढ़ने की जो खुशी है बहुत बड़ी है। हमने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी ना कि दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, याद नहीं रहता, गरीब परिवार, किसान का घर। और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन मैं समझता हूं जो है जैसा भी है ठीक है। ईश्वर खुदा ने कुछ सोच समझकर हमें इस तरह से बनाया, उनको धन्यवाद दें आज की परिस्थितियों के लिए, आगे बढ़े। नहीं तो एमए की 2-2 डिग्रियां मेरे पास भी थी, थोड़ी और कोशिश करता तो किसी बैंक में मैं भी की करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सैंक्शन करता होता, लेकिन ये नहीं हो पाता। तो जो है बेस्ट है। बस मेरी बात पहुंच गई दादा आप तक, हाँ, सब लोगों के वजह से। तो बस जो है बस ये ठीक है, उसको स्वीकार करें, आगे बढ़े। अच्छा, काफी स्टूडेंट मित्रों से मिलता हूं, मुंह लटकाए बैठे हैं, माता पिता ने गिरवी रखी है उनकी फीस। ये तो आप लकी है कि एसजीयू में इतने कम से कम फीस में आप इतना इंटरनेशनल स्तर का, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आप यहाँ पे शिक्षण पा रहे। दोस्तों मुझे आपसे ईर्ष्या होती है, मेरे जमाने में एसजीयू होती तो मैं शायद और कितनी स्टेप आगे बढ़ गया होता संजय भाई साहब। लेकिन फिर भी वहां पे स्टूडेंट को मिलता हूं तो बस बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल, कहीं हुई टीनेजर्स के वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप हो गए, मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, कहीं पे सब्जेक्ट रह गया, कहीं फेल हो गए, कहीं पे स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाया, बस मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हैं। उन तमाम मित्रों से कहता हूं, काफी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूं गिरीश भाई साहब, तो बस उनका भी यही है कि बस 6-8 महीने हो गए, हमने स्टार्टअप शुरू किया है, सक्सेस नहीं मिल रही और मुंह लटकाए बैठे हैं। लेकिन सब में एक पेशेंस की जरूरत है। असफलता तो आएगी, कुछ भी काम शुरू करेंगे फेलियर आने वाले हैं, और इन असफलताओं की बुनियाद पे ही तो सफलताओं की इमारतें खड़ी की जा सकती है। तो ये हताशा, डिप्रेशन से बाहर आके हम और ज्यादा कोशिश करने की कोशिश करें। काफी सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो 4-6-8 महीने में वो रिजल्ट चाहते हैं, जहां पे लोगों ने अपनी पीढ़ियां लगा दी। 1945 में एक खाने का तेल बेचने से विप्रो की शुरुआत हुई, 1980 तक तो 787 लॉन्ड्री बार बेचते थे, और 2.5 लाख करोड़ की कंपनी, 1.5 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड है। 1990 में इन्फोसिस को 2 करोड़ का ऑफर था खरीदने के लिए, आज 6.5 लाख करोड़ की कंपनी है। धीरूभाई अंबानी साहब ने 1950 में मसाला बेच के शुरू की, वे थे तब तक 19,000 करोड़ की, और आज 19 लाख करोड़ की कंपनी। दोस्तों अमेज़न ने एक तो किताबों की दुकान के तौर पे शुरुआत की थी, और आज अमेज़न आप जानते हैं कहां पे। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, सफलताएं जरूर मिलेगी। काफी सारे दोस्तों ने 3 इडियट फिल्म देखी रहेगी, मैंने भी देखी थी मेरी वाइफ के साथ में। यहाँ जो स्टूडेंट मित्र हैं उनके लिए खास कहता हूँ, बहुत अच्छी मैसेज थी। लेकिन उसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बना के उड़ाने का प्रोजेक्ट दिया गया था। वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता लेकिन उड़ा नहीं पाया, तो पंखे से लटक के खुद उड़ गया, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोस्तों फेलियर तो आने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी कभी गलती से आपके जीवन में ऐसा कोई विचार आए तो उस चाबी के गुच्छे को याद कर लिया करो, जिसमें 50-60 कितनी भी चाबियां हो, लेकिन कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। बस एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। एक ताकत बिल्कुल है इस पृथ्वी पे जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, एनर्जी क्यों ना सोचें। दूसरे की बुराइयां और दूसरे की वीकनेस ढूंढते ढूंढते फिर जाने का वक्त आ जाता है, और फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा की आईना पोंछता रहा। अच्छा संजय भाई साहब, काफी मित्रों से जब मैं हाथ मिलाता हूं तो उनकी हर उंगली में अंगूठी, मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां क्यों लगाई हुई है? वो कहते हैं हमने भी बड़ी मेहनत कर ली, बड़े पापड़ बेल लिए, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ा है, वही नैया पार लगाए। वापस मुझे बताते भी हैं कि देखो ये लाल वाला मंगल ग्रह का, सफेद वाला, दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में सजाए हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, और वहां वो करोड़ों किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? जो कुछ तुमने करना है खुद ने करना है। संजय सर ने जो घोड़े की नाल की बात कही ना दोस्तों, बस ये अंधविश्वासों से, धागा तावीज और इन ग्रहों के चक्कर से हम बाहर निकले। वामन राव पै क्या खूब कहते हैं कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार। हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं, बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह के हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। लेकिन जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हुए हैं, इस मंच से मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो
जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं दोस्तों। जितने लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने ऐसी ग्रहों वाली अंगूठियां जरूर लगा के रखी हुई हैं। उस 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से स्पोर्ट्स निकल चुकी थी, लेकिन 26-27 की उम्र में जो स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देता है, उस एज में मैंने वापस खेलना शुरू किया। गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक मेरे पसंदीदा खेल थे। डिस्ट्रिक्ट स्टेट होते हुए 2001 में मैंने नेशनल खेली और 2002 से टिल टुडे मैं शॉर्टपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूं दोस्तों। अब तक मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स हैं। कुछ आपको दिखाने के लिए लेकर आया दोस्तों मैं। 117 मेडल्स हैं दोस्तों मेरे पास में पैरा ओलंपिक के, लेकिन इसका पूरा श्रेय नीता को जाता है। जब पहला नेशनल आया, उसने कहा आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम तक जाना पड़ता है, कितना अच्छा जिम ही आप तक, उसने घर पे एक जिम लगा दी। लेकिन संजय सर, आज परिस्थिति है कि सुबह 4 से 8 जिम में जाना पड़ता है, उसके बिना नाश्ता नहीं मिलता। एग्रीमेंट ही है कि जिस दिन एक्सरसाइज नहीं उस दिन नाश्ता नहीं। अभी आज बट नेचुरल है, 2-2:30 बजे पहुंचूंगा तो सुबह जिम नहीं जा पाऊंगा। फिर बड़ी मिन्नतें करो, बड़ी खुशामतें करो तो आधा सा पराठा दया दृष्टि दिखाते हुए दे दिया जाता है। उस प्लेट को लेके जिम के किसी कोने में खड़े खड़े चुपचाप खा लेता हूँ और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता ही है, कहां शुरू कहां खत्म। लेकिन परेशानी तो मेरे स्पेन के कोच ने बढ़ा दी। वो रोज मेल करके कहता कि बाकी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि ये 350-400 पुशअप्स निकालना, ग्राउंड प्रैक्टिस है, सब पसीना पसीना। लेकिन उसने और एक मेल डाल की परेशानी बढ़ा दी कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन भावेश ने हफ्ते में 4 दिन 5-6 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अब कोच कहता है तो करना पड़ेगा। नीता ने अपनी कार में बिठाया, मुझे पोलो ग्राउंड ले गई, बड़ा सा ग्राउंड। उसने कहा 1 राउंड लगाओ 800 मीटर, 10 राउंड में तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा। उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली, उसमें से नायलॉन की एक रस्सी निकाली, एक छोर कैरियर को लगाया गाड़ी को, दूसरा छोर मेरे हाथ में। अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो। हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। लेकिन मैं भी बड़ा खुश था कि कितना प्यारा सा दिमाग मेरी धर्मपत्नी ने लगाया। लेकिन ये खुशियां सिर्फ 7 दिन टिकी। संजय भाई 8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है, और उस दिन से आज तक मुझे उससे बड़े दबकर रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को अपनी वाइफ से दबके रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि आज गलती से उसके सामने ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और बड़ा जोर से फिर खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ओम साहब, यानी साहब, ये जो उसका सपोर्ट है तभी ये मुमकिन हो पाया। मैं हर बार उसको कहता हूँ हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के कहे जाते हैं, लेकिन नीता आपको प्रॉब्लम न हो तो 7 के साथ एक 0 और लगा देना। दोस्तों सिर्फ 5-7 मिनट में खत्म करता हूँ कि कई बार इन ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल्स के बारे में सोचो तब लगता है कि ये सब सेकेंडरी है। आज इन हजारों हाथों को जो रोजगार जनरेट हो पा रही है, यही सबसे बड़ा अवार्ड है। आज आप सबके बीच में आकर आप सबसे मिलना, ये सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार छोटी छोटी सफलताओं से हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। आज जितने सफलताओं के धनी, इतने पुरस्कारों के धनी, लेकिन इतने जमीन से जुड़ाव, ये कहीं भाग्य में देखा जाता है। सिर्फ BID के नहीं, आप SGO के भी चेयरमैन है, चेयरपर्सन, अध्यक्ष है, लेकिन कई बार तो चेयरमैन तक पहुंचना भी नामुमकिन हो जाता है। पूरी जिंदगी स्टाफ की बीत जाती है, फिर चेयरमैन का मुंह नहीं देख पाते। लेकिन आप इतने सहज है। ये जमीन से जुड़ाव बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता है कि कुछ सफलता मिली नहीं कि हवा में लगे उड़ने, और उन उड़ने वाली मानसिकताओं को मैं हर बार कहता हूं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। दोस्तों, प्रकृति भी क्या खूब सिखाती है। पेड़ों को फल लगते हैं, ब्रांचेस झुकती हैं, तो हमारे भी व्यक्तित्व को जब सफलताओं के फल लगे, झुकना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज महेंद्र भाई साहब वो ऐसा गया है ना कि कोई ब्लाइंड का हाथ पकड़ के रास्ता भी क्रॉस करा देगा, तो रास्ता क्रॉस कराने के बाद उसके दिल में बिल्कुल ये बात आ जाती है कि बस अब ईश्वर खुदा बनने से मैं फुट भर पीछे रह गया। बस एक शॉर्टकट लगा हुआ है सब। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाउसफुल 4 में कहते हैं ना कि कभी कभी तो लगता है कि अपुनज भगवान है। और ये जो शॉर्टकट मार के ईश्वर खुदा बनने वाले लोग हैं ना, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस मंच से कि गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, गजरे के सब फूल नुकीले हो गए,
तेरे हाथ के तो ये कंगन भी ढीले हो गए और साख के सब फूल अकेले हो गए, क्योंकि गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। और शिव बनना है, शिव बनना है, अरे शिव बनना है तो पहले विषपान भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जामुन खाए और होठ नीले हो गए। दोस्तों आज आप सब यहाँ पे हैं, आज बीआईडी में आना मतलब जिसने विषपान किया है, जिसने संघर्ष किया है, वही बीआईडी से जुड़ सकता है। संजय सर, महेंद्र भाई साहब से लेकर सुनील भाई, चांडक साहब, सब आप सब लोग यहाँ पे जितने भी, निकुंज भाई आप हैं, सब लोग जो यहाँ पे हैं, हर एक इंडिविजुअल ने कितने कितने संघर्ष किए, तब जाके आप सब आसमान की बुलंदियों तक पहुंच पाए। आपने आपका एक मुकाम हासिल किया ऊपर। तो बस ये शॉर्टकट नहीं चलेगा दोस्तों, हम मेहनत करें, आगे बढ़े। कितने सारे स्टूडेंट मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो करना चाहते हैं, जो हॉबी है ना, बस वो पढ़िए और बस आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसको पूरी ईमानदारी लगन से करने की जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आज का दिन गया वो कभी वापस नहीं आने वाला। हर एक क्षण उतना ही कीमती है, तो जो भी करना है अभी से तुरंत उसके ऊपर काम करने की शुरुआत करें। लेकिन आज समाज में व्यवस्था ऐसी हो चुकी है ना कि हमने सबने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, चारों ओर सिर्फ पैसा पैसा पैसा। पैसों को हमने अपना मापदंड बना लिया। जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़ जाए, लेकिन इतने भी ना हो जाए कि फिर उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों ये जो ज्यादा का पैसा है ना, वो समाज का है। दोस्तों आज आधार के साथ पेन और पेन के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों तो ये ज्यादा का पैसा समाज का है। नहीं तो संजय सर को क्या जरूरत थी कि आज वे समाज के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी करते, इतने सारे सोशल कामों में रहते। आप सबने मिलकर बीआईडी का गठन किया, आप भी अपने बिजनेस में सब खुश थे, अपना अपना पैसा कमाते, लेकिन आप चाहते हैं कि समाज बड़ा हो, आप चाहते हैं कि सोसाइटी में जो नीडी है उनको और बड़ा किया जाए। यही सबसे जरूरी है। दोस्तों ये जो ज्यादा का पैसा है ये समाज में लग रहा है। आप सबके माध्यम से ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे। नहीं तो दोस्तों हमने पूरी जिंदगी बिता दी पैसा कमाने में, और फिर अभी हमने 4-4.5 महीने राकेश झुनझुनवाला साहब का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि 62,000 करोड़ है लेकिन मेरे पास हेल्थ नहीं है। ये 62,000 करोड़ भी मेरे हेल्थ को नहीं बचा पा रहे, मेरे किडनी के प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे। दोस्तों हमने क्या किया कि पैसा कमाने के लिए हेल्थ को गिरवी रख दिया कि पैसे आ जाएंगे फिर हेल्थ ठीक कर लेंगे। न हेल्थ रही न पैसा रहा दोस्तों। और इसके लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गुनहगारों की इस दुनिया में हम भी गुनाह कर बैठे। कैसी मिली थी जिंदगी, कैसी तबाह कर बैठे। ये ज्यादा पैसा समाज में हम बांटे, जिस तरह से संजय सर और आप सब लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को बड़ा कर रहे हो। दोस्तों उन जरूरतमंदों को आगे लेके जाने की कोशिश करो। संजय सर नहीं तो एक आलीशान अपनी जिंदगी बिताते, लेकिन उन्होंने अपना अथाक जो श्रम का, मेहनत का, खून पसीने का पैसा था वो लगाकर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी लगाई कि आजू बाजू के काफी जो हमारे मित्र हैं जो अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए प्यारा सा, आज तो देश के कोने कोने से, विदेशों से भी स्टूडेंट आने लगे दोस्तों। और खरे अर्थ में आप एसजीओ के ब्रांड एम्बेसडर है और बस आपने एसजीओ का नाम और बड़ा करना है। और इन पैसों के लिए तो इतना ही सुनील भाई मैं कहना चाहता हूं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम। हे जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हे गरीबी यूं रास्ते में हमें अकेला मत छोड़ देना। हे अमीरी दूर हट, नापाक हो जाएंगे हम। ये बातें उस फुटपाथ पे उस खुली गटर के बाजू में मैं कहता तो शायद ये मजाक सा लगता, लेकिन आज 9,500 परिवार ये स्किल सीख के अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। आज मुझे बिल्कुल हक है कि आज 250 करोड़ की गए साल हमने कैंडल बेच दी इन 9,500 लोगों ने मिलके। ये सब पैसा इन जरूरतमंदों में लगा, उन्होंने स्किल सीखी और आज खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर मस्जिद के बाहर में हाथ फैलाए थे, आज सब ये प्रोडक्ट बना के बेच के अपने पैर पे खड़े। 40,000 करोड़ की कैंडल इंडस्ट्री है और एक स्टेप हम आगे बढ़े तो 2.5 लाख करोड़ की कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की इंडस्ट्री है। दोस्तों इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर हम क्यों पीछे
पीछे रहे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस उस घर की चार दीवारी से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन एक बात मैंने अनुभव की, यहाँ पे आधे घंटे हमने संजय सर की वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ मीटिंग में भी मुझे उन्होंने वहाँ पे शामिल किया, सभी महानु डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला, आप सब मित्रों से मिलने का मौका मिला। लेकिन मैं समझ पाया हूँ अच्छे अच्छे BNI CEO क्लब, सैटरडे क्लब और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में मैं गया, लोगों से मिला, लेकिन बड़ा कमर्शियल सा वहां पे लगता है। लेकिन आप सबके बीच में आके मुझे ऐसा लगा कि किसी मैं BID में नहीं, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं, लेकिन एक बड़े से भरे पूरे परिवार में आया हूं। दोस्तों, आप सब एक परिवार की तरह है और इस तरह से एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग आगे बढ़े हैं। ये मिलना ही तो सबसे जरूरी है। और संजय सर, आपके नेतृत्व में और सभी महानु, अन्ना साहब हो, चितले साहब हो, आप सब सीनियर, यहाँ पे महेंद्र भाई साहब है, आप सबने मैत्री, प्यार और आत्मीयता के धागे में BID को जो ये एक मजबूती दी है, उनको एक प्यार के धागे में आपने सबने बांधा हुआ है ना, यही BID को अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। ये मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलने से रास्ते निकलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं है। बस अब हम लोग मिलकर आए और प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे बात करें दोस्तों। और इस मिलने मिलाने पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कार्य आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहल्लत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे फिर आ जाए। और मुमकिन है, अरे मुमकिन है, इन्हीं ही में कहीं हम लेटे हो ठहर जाना, अगर रास्ते में कोई मजारे आ जाए, आके मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाए। सिर्फ 1 मिनट में खत्म करता हूं संजय भाई साहब। नीम 2011 में मैंने नेहरू माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेने की कोशिश की। मुझे देखकर वहां के ऑफिसर ने मुझे टालने की शुरुआत कर दी, वो मेरी जवाबदारी लेना नहीं चाहते थे। देखो मिस्टर भाटिया, जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कार, मकान, इंसान सब छोटे छोटे चींटी जितने दिखते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम हो जाता है। महेश भाई साहब, मैंने उनको बीच में रोकते हुए कहा कि पहले मुझे सिलेक्ट करो, मुझे दिखता तो मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम होता, चक्कर आते हैं। मैंने उनको बाध्य किया, उनसे नेहरू माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद में माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप, टोक कांगरी 2 बार, मीरा हिल नेपाल, आइलैंड नेपाल, करसुभाई 9 बार हुआ, जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पीक है। और अभी अक्टूबर में हमने माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका खंड का सबसे ऊंचा शिखर सक्सेसफुली क्लाइंब किया। ये फोटोग्राफ देखकर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, हाथ स्लिप हो गई तो 10,000 फुट नीचे आप खाई में गिर सकते हो। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हर कोई सर्वगुण संपन्न तो है ही नहीं। ईश्वर खुदा ने सब में कुछ न कुछ कमियां जरूर रखी हुई है, नहीं तो कोई याद भी कौन करता। तो ये कमियां, ये कमजोरियां हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, बस इन कमजोरियों को, इस वीकनेस को हम हमारी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आपने यहाँ पे जो बुलाया है ना संजय भाई साहब, बीड़ के माध्यम से मैं सुनील भाई साहब का जिंदगी भर ऋणी रहूंगा कि सुनील साल्डा जी, आपने मुझे इस भरे पूरे परिवार से जोड़ा। यहाँ चांडक साहब, बियानी साहब, आप सब महानुभाव यहाँ पे जो आए हुए, एक एक डायरेक्टर, एक एक सभासद, सबका धन्यवाद करता हूँ। सुबह महेंद्र भाई साहब के साथ में मैं रोटरी 3170 के बिल्डिंग में गया था। कितने रोटरी क्लब में गया, इंटरनेशनल, नेशनल, लेकिन यहाँ पे कोल्हापुर में जो काम हो रहा है रोटरी का, जबरदस्त काम, करीब मुफ्त में ही समाज की सेवा की जा रही है। महेंद्र भाई साहब, आपको सैल्यूट है। आपने सबने अपने खींचे के पैसे लगा के आपने इतना बड़ा रोटरी का उपक्रम यहाँ पे किया। हर किसी ने जाके वो देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि समाज के लिए किस तरह से काम हो रहा है। और संजय भाई साहब, आज
आपने यहाँ मुझे जो बुलाया ना, ये जो मान सम्मान दिया, ये एक अकेले भावेश का मान सम्मान नहीं है, देश के कोने कोने में बसने वाले करोड़ों करोड़ों दिव्यांग मित्रों का मान सम्मान है। उन सब के तरफ से मैं आपका और बीड़ का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आप सबके प्रति सुनील भाई साहब, मेरे मन में जो रिस्पेक्ट और मेरे मन में जो श्रद्धा के भाव है ना, ये मुझे बिल्कुल कहने के लिए आज विवश करते हैं कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में भूत बनकर बैठे होंगे, जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में भूत बनकर बैठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। सदियां बीते, अरे सदियां बीते, जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी बीड़ा घर घर बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे, अक्सर बनकर बैठे होंगे। मेरी बंद आंखें आज संजय भाई साहब वो ख्वाब देख रही है, मैं सबके सामने वो ख्वाब बताना चाहता हूं। ठीक है, अभी बीड़ यंग है, 1-2 साल ही हुए, लेकिन आने वाले सालों में बीड़ हो या एसजी हो, उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस एक ऑडिटोरियम में नहीं हो पाएगी, आपको स्टेडियम लगेंगे बड़े बड़े संजय भाई साहब। इस माहौल को पूरा करने के लिए इतना बड़ा वो इवेंट होने वाला है। और आखिर में वापस याद दिलाना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ हो ना हो, विजन का होना बहुत जरूरी है। हम उसको गोल, उद्देश्य, टारगेट, कोई भी नाम दे सकते हैं, हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है। सुनील भाई साहब, आपने मेरे लिए वो विजन देखा था, बियानी साहब, ओम चांडक साहब, आपने वो विजन देखा था। हर हफ्ते तो आपका फोन आ जाता था उस फुटपाथ पे, नहीं तो कौन उस स्ट्रीट होकर को याद रखता, लेकिन आप चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे ब्लाइंड मित्र आगे बढ़े, और उसका नतीजा है। लेकिन दोस्तों, ये 9,500 पूरा नहीं है, अभी तो बहुत काम करना, अभी तो शुरुआत हुई लगता है। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जाने से पहले कम से कम एक 50,000 से ही मेरे ब्लाइंड मित्रों को मैं उनके पैर पे खड़ा कर दूं, मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। दोस्तों, इसके लिए काम कर रहा हूं, यही विजन लेके काम कर रहा हूं, और अंत में इसी विजन पे, इसी गोल पे, टारगेट पे जो मेरी पसंदीदा लाइन है, वो कहते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ, मंजिलों को कभी यह ना बताओ, अरे मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहां हैं, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहां हैं। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बीड़, थैंक यू एसजी, थैंक यू संजय भाई साहब, आपका बहुत थैंक यू सो मच। सबसे बढ़िया स्पीच कहूँगा मैं इसे, और इससे हमारा खून और बढ़ गया है भावेश भाई, और इसे हम बीड़ के काम में अच्छी तरह से लगाएंगे और अच्छी तरह से आगे लेके जाएंगे। जैसे आपने, मैं एक बात बोलना भूल गया था मेरे स्पीच में, कि मैं भी एक ब्लाइंड स्कूल चलाता हूँ मेरठ में, करीब 20-25 साल हो गए, करीब 25 साल से हम हमारा ट्रस्ट चला रहा है, वो लायंस क्लब, और हम तो इसके लिए मुझे फ्रेंड ऑफ ब्लाइंड्स का एक अवार्ड भी मिला है। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आगे भी अगर आपके कार्य में कोई मेरे ग्रुप की तरफ से अगर कोई सेवा लगेगी, तो मैं हमेशा सहकार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, यह मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि विजन कैसे चाहिए, मैं उसके आगे जाके बोलूँगा कि विजन के साथ पैशन भी चाहिए, मिशन भी चाहिए, और एक्शन भी चाहिए। सिर्फ विजन होने से भी कुछ नहीं होता है, आपने एक्शन दिखाई उसके साथ में, पैशन के साथ में, तो इसके लिए एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्शन हम बीड़ में भी लाना चाहते हैं। विजन तो हमारे पास बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्शन अगर हमारे साथ में रहेगी तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत डेवलप्ड सिटी बन सकते हैं, इंडिया की वन ऑफ द डेवलप्ड सिटी। तो इसके लिए जैसे आपने कहा कि एक्सक्यूजेस नहीं बोलना चाहिए कभी, फेलियर तो मिलेंगे ही। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने अपने घर के गहने बेच के एजुकेशन किया और वो साइंटिस्ट बने अच्छे। अमिताभ बच्चन को जैसे रिजेक्ट किया था उनके आवाज़ के लिए, लेकिन वो आवाज़ की वजह से सुपरस्टार बने। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है। अरुणिमा सिन्हा है, जिसके दोनों पाँव कट हो गए थे रेल के पटरी पे, डॉक्टर ने कहा था उसे चलने नहीं आएगा,
लेकिन फिर भी उसने एवरेस्ट को जीता। और ऐसे ही विल्मा रुडॉल्फ है, जो पोलियो था बाय बर्थ, उसे डॉक्टर ने कहा था वो चल नहीं सकती है, लेकिन उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलाया है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया अपने लाइफ में। तो ये जो हमारा एटीट्यूड रहेगा हमेशा, तो हम कहीं भी जा सकते हैं आगे। और इसके लिए हमें सब एक्सक्यूजेस छोड़ के आगे, जितना आगे जाने को आएगा, बीड़ को भी आगे लेके जाएंगे और अपने सिटी को भी आगे लेके जाएंगे, स्टेट को आगे लेके जाएंगे और अपने देश को भी आगे लेके जाएंगे। तो इतना इनका जो आज का स्पीच था उसका मैं एक समरी मैंने अभी बनाई थी कि जो एक रोज सिर्फ हम इतना करते हैं कि गम को डिलीट, खुशी को सेव और मेहनत को रिचार्ज, दोस्ती को डाउनलोड, दुश्मनी को इरेज, सच को ब्रॉडकास्ट, झूठ को स्विच ऑफ, टेंशन को नॉट रीचेबल, प्यार को इनकमिंग, नफरत को आउट गोइंग, हंसी को इनबॉक्स, आंसुओं को आउट बॉक्स, गुस्से को होल्ड, मुस्कान को सेंड, मदद को अगर ओके करते हैं और दिल को वाइब्रेट करते हैं तो हमारी जिंदगी की रिंग टोन बहुत अच्छी तरह से बजेगी। इसलिए फिर से एक बार भावेश जी को शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आप आए, हमें इतना इंस्पिरेशन मिला है हमें कि उसका हमें आगे हमारे फ्यूचर में बहुत अच्छा यूज होगा उसका, और यूटिलाइज करेंगे अच्छी तरह से। और आगे भी आपको बुलाते रहेंगे हम हमेशा, बच्चों के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसके लिए भी हम बुलाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है? ये डिमांड ही है सर, जो ये डिजाइन डेवलप करने में बड़ी हमें योगदान दिया। लेकिन मुझे दिन रात कैंडल की सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। आप मुझे मेहमान भी बनाए, कौन से कप के, कौन से सेब के कप में भाभी माँ ने मुझे चाय परोसी, मुझे लगता है बस इस सेब को मैं मुंह में डाल दूं। ऐसा करते करते बस हमने पूरे विश्व को वैक्स में डालने की सब कोशिश की। और डिमांड इतनी होती है, और ये कस्टमर बिहेवियर भी होता है कि आपके सामने अगर 2000 चॉइस है तो 2001 भी मांगने की कोशिश करता है सर। वो 2000 में से सिलेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे सरस्वती साड़ी के हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, वो भली भांति शंकर भाई साहब समझ सकते हैं सर के ये कस्टमर को सेटिस्फाइड करना कितना प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो बस ये डिजाइन इसी तरह से डेवलप होती गई। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल सर, उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सर कि ये जो काम है ना सर, वही हमें बड़ा बनाता है सर। तो बस कितनी भी प्रॉब्लम आए, और ये रोज का कुछ अलग, रोज कुछ हटके, और मैं अभी तक अपने कामों से 28 सालों में संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए रोज कुछ नया, रोज कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी काम को ना न कहें। काम, हर एक काम उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और कितने कितने ऐसे काम आए जिनको हमें उसका एबीसीडी भी नहीं पता था, लेकिन वो काम हमने हाथ में लिए, उस पर रिसर्च की, हमने उस पर डेवलपमेंट की, और आज हमने कितनी कितनी नई डिजाइन डेवलप कर चुके हैं। और 10,700 तो हमने शायद 2019 में ग्रीनिस बुक को फोटोग्राफ्स भेजे थे। इन सालों में तो और कितनी डिजाइन हो चुकी है। इसके साथ में हमने गार्लैंड बनाए, डोर तोरण बनाए, अगरबत्तियां बनाई, लोबान बनाई। हम 1.5 से 2 करोड़ तो कपड़े की थैलियां बना लेते हैं, क्योंकि वो भी डिमांड थी, हमें बाहर से खरीदनी पड़ती थी। तो ऐसा करते करते आज इतना बड़ा ये एम्पायर, इतना सारा रोजगार हमारे इन दिव्यांग मित्रों को जनरेट हो रही है। तो रोज कुछ नया, रोज सुबह उठकर कुछ नई चीजें, कुछ अलग चीजें। आपको और एक बात बताऊं कि इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, वो पहले हम पैराफिन यूज करते थे सालों पहले, लेकिन हमने उसको अलविदा कहा। अब हम इसमें सोया वैक्स यूज करते हैं, तो सोयाबीन का बाय प्रोडक्ट, किसानों को इससे फायदा हुआ। बीज वैक्स हमने यूज किया, इससे किसान आर्टिफिशियल पेटियां अपने खेतों में लगाने लग गए। हनी खादी ग्रामोद्योग ने ले ली, वैक्स हमने खरीद लिया, हजारों रुपये उनको मिलने लग गए। जो एक परागन की समस्या थी उनके खेतों में, वो दूर हो गई। तो ऐसा रोज कुछ अलग, रोज कुछ करते करते, और ये प्रॉब्लम, ये हर्डल, ये चैलेंज नहीं आते ना, तो अब लगता है कि जिंदगी कुछ रही नहीं। रोज सुबह उठकर मैं नेताजी से पहले कहता हूँ कि आज चैलेंज की लिस्ट मुझे दे दो, तो कहती चुपचाप नाश्ता करो, आज रविवार है। तो ऐसा लगता है कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये जो अटपट कितना, अभी ये कैसे भी कपड़े पहन के दिमाग में चल रहा है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, तो बस वो वर्कशॉप में घुस जाता हूँ। वो बड़ी परेशान रहती कि आप सब कपड़ों में मोम लगा देते हो, कलर लगा देते हो, कितने नए कपड़े आपके लिए लाए जाए। लेकिन ये रोज कुछ अलग करने की जो खुशी है, और ये क्रिएटिविटी का जो आनंद है ना सर, ये बहुत बड़ा है। हमारे हाथों से किसी चीज का निर्माण होता है ना, उससे ज्यादा बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती सर। थैंक यू सो मच। इस तरह से भी जवाब दिया जा सकता है कि संजय सर, मेरे बड़े भाई के प्रति जो मेरे आदर और जो श्रद्धा थी ना, वो कैंडल बना गई। मैंने कहा बनाई सर। और
बारे में बात निकली है तो मैं आपको बता दूं सर कि दुनिया में 129 फुट की अब तक की सबसे ऊंची कैंडल बनी है, लेकिन मेरे सभी ब्लाइंड मित्र चाहते हैं कि 150 फुट ऊंची जितनी एक कैंडल बनाए जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर डिजाइन किया जाए। अभी ये फिनोलेक्स जो कभी 6 फुट कट करने देने के लिए तैयार नहीं था, आज छाबरिया भाई साहब ने अपने पूरे इंजीनियर्स लगाए हुए कि 150 फुट की कैंडल को कैसे डिजाइन किया जा सकता है सर। वो मोम भी देने के लिए तैयार है सर। तो हम निकट भविष्य में ये रिकॉर्ड बनाने के लिए अग्रसर होंगे सर। वो भी जब किसानों से मिलते हैं तो वो भी उनको यही कहते हैं कि बस पहले अपने खेतों की अच्छी मशागत करो, अच्छे से अच्छे बीज खरीदो, वो डालो, बराबर पानी दो, उसमें बराबर दवाइयां दो और बड़ा उसको धूप लगने दो, पानी लगने दो, मेहनत करो, उसमें जो गवत वगैरह निकलते हैं सब साफ करो, बड़ी मेहनत करो और फिर देखो कि कैसे फसल लहलाती है। हम तुम्हारे साथ रहे सर। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत मतलब 25-27 साल पहले मैं भवेश भाई को पैनोरमा होटल महाबलेश्वर के सामने एक छोटा सा टेबल था, उसमें 8-10 मोमबत्तियाँ लगी थी। उस वक्त मैंने देखा था और ऐसे ही क्यूरियोसिटी थी मेरे में कि ये आदमी खुद कैसे करता है, तो मैंने उनसे पूछताछ की। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं गौतम में रुका हूँ तो अपन मिलते हैं। तो इन्होंने कहा गौतम होटल के बाजू में ही मैं रहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को उस दिन सेकंड डे चाय पे बुलाया और भवेश भाई आपने कहा था कि मैं स्मार्ट था, नीता भाभी भी कुछ कम नहीं थी उस टाइम। बहुत स्मार्ट थी। आज की बोल रहे थे, इसलिए मैं उस टाइम की नहीं आज की बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आज तो स्मार्ट है ही, लेकिन उस टाइम की बात बोल रहा हूँ। नीता भाभी भी बहुत स्मार्ट थी। इनका कुणाल नाम का बेटा है जो इंफोसिस में, पूना में है ना, हाँ पूना में है। वो भी हम जब मिले थे तब 4-5 साल का था और उस टाइम हमारा इंटरेक्शन चालू हुआ। हमारा मतलब करीब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार फ़ोन होता था। बहुत मतलब एक गर्व होता है कि ये आदमी इतना बढ़ सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। और ऐसी अवस्था में भवेश भाई, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू नीता भाभी। बहुत 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 धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय यहाँ निकाला। और हमारी जो भी बात होती थी वो कविता में और गीतों में होती थी। वो एक गीत सुनाते थे, मैं भी एक गीत सुनाता था। तो ऐसे हमारा ये प्यार बढ़ता गया और भगवान करे, ईश्वर करे, आपने जो 150 फुट की कैंडल का जो स्वप्न देखा है वो पूरा हुए और भी कोई आपके सपने सब पूरे हुए। हमारे यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा बिल्कुल। ये हमारे इधर यूनिवर्सिटी में आप बनाओ, ये हमारी भावना है और ये आप जरूर बनाएंगे और ये आपको जरूर मान लेंगे। मैं उस टाइम 50वें बर्थडे पे, संजू बाबू के 50वें बर्थडे में गोवा में बर्थडे था, तो भवेश भाई का फोन आया था। एक 6-6.5 फुट की हाइट कितनी है, मैं बोला 5 फुट 10 इंच से मतलब 6 फुट तक है। तो इन्होंने इमीडिएट 6 फुट का कैंडल बना के इचलकरंजी भेजा और इचलकरंजी से हम कैरी करके वो गोवा लेके गए। बहुत ही मतलब वहाँ से वो मेरे को बोलते थे मेरे को संजय भाई को मिलना है, संजय भाई को मिलना है। तो ये एक कोई इंसिडेंस हो गया। परसों मैंने उनको फ़ोन किया, अपने एसजीओ में हमारा एक बीआईडी ग्रुप है उसकी तरफ से आपका एक लेक्चर रखते हैं। उन्होंने इमीडिएट मतलब इतना व्यस्त रहते हैं। अभी रोटरी कॉन्फ्रेंस अभी है अगले महीने में, उनका एक मेन स्पीकर के रूप में लेक्चर है, बराबर है ना? हाँ। और इसके साथ ही बहुत अच्छे दिल के इंसान है, पूरा परिवार। भाभी भी बहुत अच्छे है, कुणाल भी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। भवेश भाई आप आए, बहुत 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 दिल से धन्यवाद। नीता भाभी आप आई, बहुत 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 मन से दिल से धन्यवाद। ऐसा ही प्रेम एसजीओ और बीड़ के ऊपर रहे, हमेशा रहे, ये हम आपसे चाहते हैं और रहेगा। मैं हमारे चेयरमैन संजय जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भावेश जी को मोमेंटो देके उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। किसी नोबेल पारितोषिक से बीना भाभी
हम चाहते हैं कि आप नीता भाभी का स्वागत करें और मोमेंटो देके उनका सम्मान करें। अच्छा Since I am here on the stage, 4 लाइन शुक्रिया की उनके लिए कहना चाहूँगी। शुक्रिया कहने से तो कर्ज बना रहता है, दिल में प्यार का अंदाज बना रहता है। यूँ तो हर चेहरा गुजर के भीड़ में खो जाएगा, फिर भी शाम का एहसास रह जाएगा। फिर भी भावेश जी की हर बात का, उनके सफ़र का एक एहसास रह जाएगा। थैंक यू। वैसे ही आप सब यहाँ आए, आप सबका भीड़ की ओर से हार्दिक 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 अभिनंदन, हार्दिक आभार। और जाते जाते 4 लाइन हम भी बोल सकते हैं भावेश भाई। कुछ देर में हम अलविदा हो जाएंगे, लेकिन अलविदा तो नहीं कहेंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते गाते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार हमारा रहेगा हरदम आपसे, साथ हमारा रहेगा हरदम आपको। आगे भी भीड़ का फंक्शन हो, हम आपको याद करेंगे, आप लौट आएंगे, हम यूं ही बुलाते रहेंगे, कभी अलविदा ना कहेंगे, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच। Sanjay Ghodawat University, empowering lives globally.